Children, here in this video we will study about classification of seed. Seed is ripened ovule. Ripened ovule. Let's start with the classification. Seeds can be classified on the basis of number of cotyledons and also on the basis of the presence of endosperm. Let's study about the classification of seed on the basis of number of cotyledons. These can be of two types, monocotyledonous seeds or dicotyledonous seeds. Monocotyledonous seeds. Monocotyledonous seed contains one cotyledon. Example, maize. Dicotyledonous seeds contain two cotyledons. Here are few more differences between monocots and dicots. The first one I have told you that monocots have single cotyledon whereas dicots have two cotyledon. Monocots have long narrow leaf and the veins present in the leaf, suppose this is a leaf, then the veins present in the leaf are parallel, that is parallel venation. And along with this, in monocots the vascular bundles, that is xylem and phloem, are scattered. The flower parts are present in the multiples of 3. Flower parts means floral whorls like sepals or petals, 3 sepals, or in the multiples of 3, 6 is like this. And in dicots there are 2 cotyledons present, broad leaf are there and the network of veins are there, they are not arranged parallelly. Then vascular bundles ring is present and the floral whorls are present in the multiples of 5 or 4. So these are the differences between monocots and dicots. Then the classification of seed on the basis of endosperm. Seeds are of two types, albuminous and ex-albuminous. Albuminous. In albuminous seeds, the cotyledons are thin and membranous and endosperm persist. Children, in this case, the endosperm, when not completely utilized by the developing embryo, it remains in the seed. Then here in this case, it acts as a nutritive tissue and cotyledons are thin. So when in the seed the endosperm is present, that type of seed is called as albuminous seed. Here you can see a maize grain. In this you can see that endosperm is present here. So this is an albuminous seed. Now ex-albuminous seed. Ex-albuminous seeds have cotyledons in them and cotyledons store food and they become thick and fleshy. Therefore, they provide the nourishment to the developing embryo. Or we can also say that endosperm is completely utilized by the developing embryo. That's why endosperm do not remain here and cotyledons are there. So children, this is a bean seed and here you can see that 2 cotyledons are present but endosperm is not present. So this was about the classification of seeds. Let us quickly revise what I have explained you today. इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सीड्स के क्लासिफिकेशन की. सीड्स को 2 बेसिस पर हम क्लासिफाई कर सकते हैं. एक है नंबर ऑफ कॉटलेडन्स और दूसरा है एंडोस्पर्म की प्रेजेंस के बेसिस पर. एंडोस्पर्म कैसे बनता है? मेल गैमीट प्लस पोलर न्यूक्लियाई और सेकेंडरी न्यूक्लियाई के फ्यूजन से बनता है एंडोस्पर्म. और एंडोस्पर्म एक न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है. चलिए स्टार्ट करते हैं सीड का क्लासिफिकेशन नंबर ऑफ कॉटलेडन्स के बेसिस पर. मोनोकॉटलेडनस होगा या डाइकॉटलेडनस होगा. मोनोकॉटलेडनस का एग्जाम्पल होगा हमारा मेज ग्रास. क्यों? क्योंकि इस तरह के प्लांट्स में इसमें क्या होता है, एक सीड प्रेजेंट होता है, एक कॉटलेडन प्रेजेंट होता है. सॉरी, एक्चुअली इट इज 1 कॉटलेडन. एंड इफ यू टॉक अबाउट डाइकॉटलेडनस सीड्स, इसका मतलब है कि उसमें 2 कॉटलेडन प्रेजेंट होंगे जैसे कि बीन सीड. अच्छा, मोनोकॉट और डाइकॉट को पहचानने के लिए और भी डिफरेंसेस हैं, और भी कैरेक्टर्स हैं जिनको हम स्टडी कर सकते हैं. जैसे कि अगर कॉटलेडन्स के बेसिस पर हमने देखा कि मोनोकॉट में 1 कॉटलेडन और डाइकॉट में 2 कॉटलेडन्स होते हैं. मोनोकॉट्स की जो लीफ होती हैं वो लॉन्ग होती हैं, नैरो होती हैं और उनमें जो वेन्स प्रेजेंट होती हैं वो क्या होती हैं, पैरेलली अरेंज्ड होती हैं. वेयरएज डाइकॉट्स में लीफ ब्रॉड होती हैं और वेन्स का पूरा नेटवर्क होता है इस फॉर्म में. फिर वैस्कुलर बंडल्स की अगर हम बात करें तो मोनोकॉट में जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं यानी कि जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं वो स्कैटर्ड होते हैं, जबकि डाइकॉट में जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं वो रिंग के फॉर्म में अरेंज होते हैं. अब उसके बाद अगर हम फ्लोरल वर्ल्स की बात करें फ्लावर में, तो मोनोकॉट्स में जो वर्ल्स होते हैं वो 3 के मल्टीपल में होते हैं,
जबकि डाइकॉट में जो वर्ल्स प्रेजेंट होती हैं वो 5 या 4 के मल्टीपल्स में होती है। जैसे अगर मान लीजिए मैंने बात करी सेपल्स की किसी फ्लावर में मोनोकॉट में, तो हो सकता है सेपल 3 हो या 6 हो या 9 हो या 12 हो, इस तरह से हो जाए। और अगर हम डाइकॉट की बात कर रहे हैं तो डाइकॉट में हो सकता है सेपल्स 5 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, या अगर हम 4 का मल्टीपल ले रहे हैं तो 4 हो, 8 हो, 16 हो, इस तरह से। तो ये हो गया डिफरेंसेस बिटवीन मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स। इसके बाद हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे एंडोस्पर्म के बेसिस पर। 2 तरह के सीड्स हो जाएंगे, एल्ब्यूमिनस सीड्स और एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स। एल्ब्यूमिनस सीड्स को हम एंडोस्पर्मिक सीड्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, कॉटिलेडन्स बहुत ही थिन और मेम्ब्रेनस होते हैं और एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। और इसका एग्जाम्पल हम आगे अभी पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर हो गया मेज ग्रेन। मेज ग्रेन में देखिए ये एंडोस्पर्म प्रेजेंट है। यहाँ पर ये जो स्क्यूटुलम प्रेजेंट है यही कॉटिलेडन है जो बहुत ही थिन और मेम्ब्रेनस होता है। इसके बाद बात करते हैं एक्स एल्ब्यूमिनस की। एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स ऐसे सीड्स होते हैं जिसमें कॉटिलेडन जिसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होता और कॉटिलेडन प्रोमिनेंट होता है, जिसमें फूड प्रॉपर्ली स्टोर रहता है और वो थिक और फ्लैशी हो जाता है, जैसे कि हमारा हो गया बीन सीड। सो दिस वाज अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ सीड्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कॉटिलेडन्स and on the basis of the presence of endosperm. Thank you. Please like, share and subscribe.